Now I am audible now. Now the Yes, sir. now the voice is clear to you. Okay, Yes, chalo. sir. Yesterday I have yesterday yesterday I was going with the critical elements of the politico legal environment of a business. Okay, yesterday I was discussing with this particular points, but unfortunately because of this network glitches, we couldn't continue. So from the place where I have left, I am going to start it from here today. The critical elements of the political legal environment of a business are as follows. These questions may going to come of maybe of 10 marks or maybe of yes, basically of 10 marks question. It's a type of questions. Okay, so be careful. The first point is the form and structure of the government. The next point is the ideology of the ruling party. The third is the strength of the opposition. The fourth one is the role and responsibility of the bureaucracy. The fifth one is political stability, the velocity of the government policies, plan and programs. The next one is socio-economic legislations, and the last one is politico-legal legislations. So these are the specific 8 points which is very important for the what you can say the responsibility sorry the elements of political legal environment of a business. Okay, now you know the form and the structure of the government used to create a policies, they used to create a strategy. Okay, and on the behalf of their strategies and policies, the businessman or any organizations need to follow that particular strategies and policies, and according to that they need to follow and they need to start their business. Okay, and the government used to collect the high levy taxes from those particular organizations. So these are the form and the structure of the government. Now there is one important aspects from this point of view is that while creating, suppose for an example, the central government of India is creating that particular structure, or the you can say the analysis, and the state government used to follow need to follow those things. Okay, the state government needs to follow those things. So these and whatever the taxes the government used to collect, they need to pay to the central government. Okay, and on behalf of this, there may be two or three divisions are there. Somebody used to do the illegal businesses. What is the meaning of this illegal businesses? Businesses means they are selling some unwanted products. Maybe they are not paying the taxes on right time. This comes under the illegal structure of the business. So whenever this type of business has been done by any organization or by any companies and all, the government used to take some legal actions against those companies. So this is the form. And in today's democracy, in India's democracy of the state government, the people participation is very important. People's participation means the customers participation is also very important. Whatever the taxes they are levied on the management or on the organization. Okay, the same business taxes or the same spend of money on the activities, that also been compulsory for the people or for the common what you can say common customers to purchase those products, and on purchasing those products they need to pay the taxes to the government indirect way. Okay, so these are the structure, you can say, how the government used to collect the taxes in this business environment. The next one is the ideology of the ruling party. The whosoever the government is coming and ruling in our India. Okay, for 5 years, for 10 years, for 15 years, they make their own strategies and policies. And according to their own strategies and policies, the organizations or the company need to follow those things. Okay, so these are, and of course, there is one important thing. Every government, whosoever is in the power, they doesn't want to harm any society. They doesn't want to harm the society. They doesn't want to harm the common people. Okay, so that is why they are very much cautious while creating the structure and policies of any what you can say business. Then it comes to the next one, the strength of the opposition. Opposition is a very important role in democracy. Okay, opposition is a very important role in democracy. The parties which get an absolute majority forms the government under the two party systems, where the
party which gets the relative majority forms of the government with the collaboration of some others, political candidate who didn't command the majority formed the opposition. The strength of the opposition depends on whether opposition parties. अब तो मैम जियो जियो कनेक्शंस करके ये कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। अभी 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 फिर ब्रेक हो रहा है क्या? वो कभी कभी बीच में होता है मैम ना, with the collaborations of other candidates who do not command the majorities. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। अभी हो रहा है मैम, देखिए तो। हेलो। हाँ ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है मैम। हाँ, मधुस्मिता अभी क्लियर है वॉइस? हाँ, मैम आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अब उसका फोन का प्रॉब्लम हो रहा है मैम, देखिए अब उसका नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है। सर अभी क्लियर है। मधुस्मिता एम आई, मुझे मालूम है ना, अब मधुस्मिता का फोन से प्रॉब्लम। मधुस्मिता एम आई ऑडिएबल टू यू? Yes, sir, you are वो देखिए फिर कट गया मैम। हम्म, the candidates who do not command the majority of forms of the opposition. मधुस्मिता डू वन थिंग, यू रिजॉइन। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, आप दोबारा जाके रिजॉइन कीजिए, ठीक है? ये होता है ऐसा कभी कभी। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशंस, देखिए अपोजिशंस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपोजिशंस का होना बहुत जरूरी है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द अपोजिशंस, okay, because oppositions are those who raise the questions for the common people. They raise the questions for the common people, they ask the questions on behalf of the common people, because they are, you can know, the oppositions represent as the, they are representing as the representative of the common people. Whatever our needs, whatever the demands we have, the common people, they used to raise those questions in the assembly hall to the ruling party. Okay, this is also in a business environment. Okay, now suppose the country which doesn't have any oppositions, suppose if you go to the North Korea, or if you go to the South Korea, where the president of the North Korea is Kim Jong, you know what is the rules and regulations Kim Jong used to follow very strictly? Whosoever the person residing in the North Korea, they need to wear a badge. दे नीड टू वेयर अ बैच। उनको बैच पहनना बहुत जरूरी है, जिसमें किम जोंग और उनके पिताजी का फोटो होना चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस घर में रहते हो उस घर में किम जोंग का और उनके पिताजी का फोटो होना चाहिए। आपका घर भले जल जाए, लेकिन आपको सबसे पहले आपका घर अगर में आग लगता है तो सबसे पहले किम जोंग का फोटो और उनके पिताजी का फोटो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आपके परिवार का कोई भी मर जाए क्यों नहीं। अगर ऐसा करते हुए पाया गया कि आपने ये स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया है, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? डेथ पेनाल्टीज, दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेथ पेनाल्टीज। सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्रिंसिपल, इसे कहते हैं तानाशाह। वन मैन रूलिंग, वन मैन, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सही कर रहा है कि नहीं, इंसानों के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोलने के लिए जाओगे तो शूट कर दोगे। तो ऐसे कंट्रीज में डेवलपमेंट उतना बढ़िया से होता नहीं है, कुछ भी कंपनीज वहां पर स्टे नहीं करते हैं, वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बनने ही वाला नहीं होता है। वहां बिजनेस या फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से अपना जो भी है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो कंट्री धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेम विद दिस, ओके। सो एवरी कंट्री नीड टू हैव एन ऑपोजिशन पार्टी, बिकॉज oppositions will going to raise the questions on behalf of the common people.
अगर गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है, वो अगर कुछ गलतियां करते हैं तो अपोजिशन उसको टोकेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। Okay, that is why in a healthy business environment, opposition party has to play a very important role in the legislative or assembly hall. Am I clear? This also a part of business environment. Next, come to the role, the role and responsibility of the bureaucracy. You know, lot of bureaucracies are there. CID, CBI, ED, enforcement directors, then a lot of directors, a lot of bureaucracies are there. What is the need of these bureaucracies? Because you know that these organizations need to focus on those perspective, on those areas where there is some unlawful business or some unlawful monetary transformations being done. They need to catch those things. Okay, they need to catch those things. ठीक है, अगर इस तरह का ब्यूरोक्रेसीज का होना भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जरूरी है, तभी जाके ना एनवायरनमेंट जो है वो स्मूथली रन होगा। आपका जो फिजिकल स्टेट है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो फिर आपका स्टेबल लाएगा। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी भी हर समय ये ओवरलुक लुक करते हैं। ठीक है, जैसे सीआईडी हुआ, सीबीआई हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टर हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है? किसी के पास अगर दो नंबरी सबसे ज्यादा पैसा रहता है, जिन्हें कभी ने टैक्स नहीं पेड किया है, जो इलीगल तरीके से कुछ भी करता है, तो दे यूज टू कैच दोज पर्टिकुलर पर्संस। ओके, उनके उसके बाद इंक्वायरी होते हैं, और उसके बाद जो भी उनके पास जो भी एक्स्ट्रा मतलब पैसा रहते हैं, जो भी वो फिर कलेक्शंस करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट कर देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट में, तब जाके ये एनवायरनमेंट जो है स्मूथ रन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नाउ लुक व्हाट दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मींस। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर टू यू, प्रत्युष एंड मधुस्मिता एंड टू मैम। अभी तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। नहीं सर, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। द वेलोसिटी देखो, मधुस्मिता, एम आई ऑडिएबल? मधुस्मिता? Yes, sir. Okay, some okay. Now, the next one is the political stability. Business grows in a political stability region. Whenever the nation becomes politically unstable, the flow of foreign capital and enterprises is adversely affected. Okay, and this is in the turn effect in the business, both national and multinational. जहां पर wherever there is instability in the politics, okay, there is where there is an instability in the politics, you can know the share markets goes down, sometimes the equity shares been not up to the mark. So what will happen? The flow of the currency or the flow of the capital will be unstable, and on that basis the enterprises or the organizations or the factories, the productions, the technologies will all going to get adversely affected. ओके, जिसकी वजह से अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हेल्दी स्टेबल रखना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट कम्स टू द वेलोसिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लान एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को भी ये नोशन रखना चाहिए, ये ऑब्जर्व करना चाहिए, जो वॉट एवर द पॉलिसीज, प्लान, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम्स आई एम टेकिंग, or I am passing through the amendments, I am passing through the assembly hall, through the proper channel, through the proper voting, तो वो जो पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, वो सबके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंसानों के लिए या कुछ सेक्टर्स के पीपल के लिए वो फायदेमंद हो, और कुछ सेक्टर्स के पीपल के लिए वो फायदेमंद नहीं हो, नेगेटिव हो। That shouldn't be happen. Okay, that's why whatever the policies, programs the government used to take the initiative, they are very carefully observed, they are very cautiously been observed, monetary. Okay, and according to that they are been transformed, they are been transformed, or they are been transfer from one state to another state, ताकि ये amendment, ये policies, ये strategies हर एक state में जाके पहुंचे, और
every Indians need to follow those strategies, policies or programs or plans whatever the government has taken. ओके, अगर ये चीज होता है तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रहता है। अगर ये नहीं होता है फिर इसका ऑपोजिट इफेक्ट डेफिनेटली आता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, पॉलिसीज या प्लान्स जो होता है वो फिर ड्रॉप डाउन हो जाता है, इक्विटी शेयर्स फॉल हो जाता है, शेयर मार्केट्स डाउन हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक अनस्टेबल पोजीशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ ऑनवर्ड्स आप पाकिस्तान में चले जाइए, पाकिस्तान एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, कितना अनस्टेबल है वहां पर, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस कितना है। It is very much unstable because government failed to take the initiatives, government failed to execute the plan and programs and policies because nobody is comes in the support with the Pakistan. Okay, the same with the North Korea also. तो these are the few examples. आप अगर इस चीज को केस स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लूफॉल्स है पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस में, या पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज या प्रोग्राम्स या प्लान जो भी वो एग्जीक्यूट करते हैं उसमें कितना फ्लॉज रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स रहता है एट द बैक ऑफ माइंड देयर गवर्नमेंट दे यूज टू टेक देयर ओन प्रॉफिट, उनको हर समय अपने प्रॉफिट की चिंता होता है, नॉर्मल इंसानों की नहीं, आम इंसानों के लिए वो कभी वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एवरी 5 years और 2 years ऑनवर्ड पाकिस्तान यूज टू चेंज देयर गवर्नमेंट, और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो फिर वहां के जो आर्मी ऑफिसर्स है वो चलाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस, उनका प्लान प्रोग्राम पॉलिसीज जो है वो 100% नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट, और दूसरा है द सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस। देखो, लॉज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, जो भी लॉज बनाया जाता है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है डेफिनेटली, सिर्फ। और उसके बाद है वर्कर्स मैनेजर्स। ओके, नाउ ओनर शेयर होल्डर एंड सोसाइटी एट लार्ज, MRTP, FERA, IORA एंड सो ऑन। ये जो है MRTP, FERA, IORA, these all are the laws, these all are, जैसे MRTP मार्केट रिलेटेड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मार्केट रिलेटेड ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक लॉ है। दिस लॉ इज बिन क्रिएटेड फॉर द नॉर्मल कंज्यूमर्स। ओके, उसके बाद FERA ये भी एक लॉ है, कंज्यूमर फोरम में ये लॉ बनता है। IORA ये भी एक लॉ है, ये भी कंज्यूमर फोरम में एक लॉ बनता है। सो दीज आर द लॉज विच नीड टू बी पास थ्रू द असेंबली हॉल, एंड दीज ऑल द लॉज आर beneficial for the normal customers or for the normal consumers. Okay, now क्या लिखा है यहां पर, टू मेंटेन द ऑर्डर इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ये क्यों करते हैं, ये लॉस को क्यों पास किया जाता है या इसका इनिशिएटिव क्यों लिया जाता है, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है या फिर इंडस्ट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक स्टेबल जगह पर रहे। ठीक है, नाउ इंडस्ट्री, उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिको लीगल इंस्टीट्यूशंस। दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, business environment. The functioning of the legislative, executive and judicial organs of the government affects business environment directly and indirectly. तो political legal institutions क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली, ये 3 ऑर्गन्स होता है। कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली, ये 3 ऑर्गन्स होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, और इसी पे बेस्ड होता है आप जो भी लॉज, आप जो भी फोरम या आप जो भी स्ट्रेटेजीज प्लान आप तैयार करते हो, दिस आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ क्रिएटिंग दोज लॉज, amendments, plan and policies, and according to that plan, laws and policies, your country's economic growth will be affected or will be affected. Look at the spelling, affected or affected. इस तीनों पिलर की वजह से जो भी लॉज, अमेंडमेंट या पॉलिसीज तैयार किया जाता है, ये तीनों को बेस करके एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, ये तीनों को मिला के ये जो लॉज बनाते हैं, इसमें डिपेंड करता है कि आप जो लॉज बना रहे हो वो इन फ्यूचर वो आपको अफेक्ट करेगा कि इफेक्ट करेगा। Am I clear? So these are the 8 to 9 elements of business environment, which is very much important. Now
Next one is how should be the relationship between the government and business organization. Business organizations का और managements का, government का एक relationship कैसा होना चाहिए. Look at the following. Government and business institutions in a country in many ways are interrelated and interdependent. Okay, they both are interrelated and interdependent. Government is also interrelated and interdependent on the business executives or business organizations, and the same way business organization is also interdependent to the government. Okay, in today's global economy, businessmen and entrepreneurs are the driving forces of the economy. एकदम 100% ट्रू वर्ड्स है. आज की दुनिया में आपका अगर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर पार एक्सेलेंस नहीं होगा, तो वहां पर जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है. इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान है. नेक्स्ट है, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी और इवन इन द मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट होल्ड्स कंट्रोल ऑफ शेपिंग द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री. इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, जो भी कंट्रीज का इकोनॉमी प्लान्ड होता है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट होल्ड करता है और शेपिंग देता है. कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज प्लान को जो शेप देना होता है वो गवर्नमेंट करता है. ठीक है, और उसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स या ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान को वो फिर आगे फॉलो करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन, फॉर मेंटेनिंग अ स्टेडी एंड अपवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, the government must try to make the environment for a business organization suitable. Okay, the next one is, for maintaining a steady and upward economic growth, the government must try to make the business organization suitable. Okay, so I don't think this line is, I need to explain. कुछ भी स्टडी अपवर्ड इकोनॉमिक को अगर अपवर्ड कंडीशंस में ले जाना है, इकोनॉमिक को ग्रोथ में ले जाना है, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई, गवर्नमेंट को, एवरी गवर्नमेंट ऑफ any country must try to make the business environment suitable. Okay, now for an example, आप लोग एक अगर मैं इंसिडेंट आपको बताऊं, आई थिंक यू नो कि जो हमारे ईस्टर्न इन कैलकाटा, जब टाटा ने प्लांट नैनो फैक्ट्रीज प्लांट किया था इन एरियाज का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, कैलकाटा में टाटा ने, छोटा गाड़ी होता है नैनो, उसको प्लांटेशन करने के लिए यहाँ पर आया था. बट अनफॉर्चुनेटली उस समय कुछ अपोजिशन पार्टी ने उस चीज को रोका था, और नैनो जो टाटा कंपनी को फिर वापस जाना पड़ा था, प्लांट नहीं हो पाया था. तो इसकी वजह से आज भी वेस्ट बंगाल में कोई भी बाहर का ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्रेन्योर्स आके बिजनेस करने के लिए 10 बार सोचता है. क्यों? यहां इतना पॉलिटिक्स है, यहां इतना लॉबी चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहां आके स्टेबल तरीके से अपना प्लान या एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ा ही नहीं सकता है. इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी वेरी पुअर इन कंपेयर टू द अदर स्टेट्स. एम आई क्लियर? ये कभी नहीं होना चाहिए, दिस शुडंट बी हैपन. बिकॉज कोई भी, आप जानते हो, देश की इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक का स्टेबल जो कंडीशन होता है वो डिपेंड करता है आपका इस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर्स के. जितना जितना ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आके अपना मतलब प्लांटेशंस करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा प्लान, बढ़ेगा. ठीक है, एम आई क्लियर? These are the main important relationship between the government and business organization. Madhusmita, am I audible to you? Yes, Hello. sir. Hello. So far, do you have any doubts which you need me to explain once more? No, na? Okay. Chalo. Now come to the next one. Look at the diagram. Look at the diagram. A beautiful diagram is there about the business and the government, the difference between business and the government, how the government used to execute the plan and policies, and how the businessman used to follow those plans and policies. Okay, first point, look at the personal conduct and lobbying, forming trade unions, political action committees, large investments. So these are the strategies created by the government.
Okay, so these are the strategies created by the government for business influences. Now what the business, what the government take those influences: laws and regulations, company laws and regulations, government agencies and regulatory bodies, sectors, central bank, trade policies. तो इसी तरह से ना ये राउंड सर्किल एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है। strategies, policies, companies, laws, agencies, regulatory bodies, सेंट्रल बैंक ट्रेड पॉलिसीज क्रिएट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उस दायरे में, उस रह के वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं relationship between okay, the main goal of business, what are the main goals? Number one, main is to both of them, hmm, वो आ जाएगा मैम फिर। Goal of business, the main goal of business is to make a profit, and government's goal is to ensure economic stability and growth. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ बिजनेस? बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? बिजनेस का मेन गोल होता है टू मेक अ प्रॉफिट। सिंपल। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, चाहे वो स्मॉल स्केल, चाहे मीडियम स्केल, चाहे लार्ज स्केल में, what is your objective? What to make a profit? और गवर्नमेंट का क्या रहता है? एंड गो टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जितना ज्यादा और ग्रोथ रहेगा गवर्नमेंट को उतना ही प्रॉफिट, बिकॉज गवर्नमेंट मतलब बहुत तरीके से और से नॉर्मल लोगों के लिए वो फैसिलिटीज वो करते हैं उसी टैक्सेस के। ठीक है, तो both of interrelated, dependent। क्या? हेलो मैम, अभी कट रहा है क्या? अभी कट? No, sir. So you मैम हेलो। हेलो, अभी भी क्लियर नहीं? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ओके। अब बैलेंस not in clear, sir. each other in many ways। क्या हुआ? What happened, Madhusmita? Any question? Sir, हेलो, ओके, ठीक है। नो डाउट, मैं कोई डाउट है नहीं ना? एनी डाउट? नो, ठीक है। no, sir. For this, the government and organization or business always try to influence and persuade each other in many ways for various purposes.
for any business try to each other business. Some government business information in request ये not कोई clear at all. type of business balance relations government करके जियो में कर हेलो अभी आ रहा है हेलो हम्म ठीक है मैम कभी कभी हो जाता है ठीक है मैम जब भी होगा ना मैम फिर डिस्कनेक्ट करके करना पड़ेगा कनेक्ट मुझे लगता है अभी आ रहा है ना ठीक है ओके नाउ a balanced relationship between government and business is required for the welfare for the welfare of the economy and nation. The same thing, there should be a balanced relationship between the government and the business because it require for the welfare of the economy and nation. एक nations के लिए economic growth के लिए business और business relationship अच्छा The next how business organization influence the government. Next question is very important. How the business organization influence the government. Business organization influence कैसे करता है government को? Look, organization try to force the government to act in ways that benefit the business activities. Okay, of course, for that an organization must go through legitimately. Okay, as far as I have told you already earlier, that organization try to force government to act in ways that benefit the business activity. The sometimes the organization or enterprises or influence the government. They try to influence the government. Why? Just to grow or for the welfare of the business activity. Of course, for that an organization must go through legitimately. Now, ये करना चाहिए जरूरी करना चाहिए ठीक है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इसको एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन या गवर्नमेंट के अमेंडमेंट में बिल को पास कराना बहुत जरूरी होता है बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेजिटिमेट वो इलीगल नहीं होना चाहिए इट शुड बी लेजिटिमेट देन ओनली दैट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज नीड टू बी फॉलो the next one is but sometimes we see that the organizations try to go over the line but sometimes कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कुछ भी बिना बताए गवर्नमेंट को कोई भी मतलब इनिशिएटिव लिए बिना वो अपने से ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो कि illegal होता है दैट इज दे कम्स टू द डाउनलाइन पोजीशंस always anyways there are common method the business organization to influence the policies that is why any organizations need to influence those policies and those policies being influenced by the government they need to be strictly organizations for the better stability of the economy. Now, what are the personal conduct and lobbying? Personal conduct और lobbying किसे कहते हैं? अभी आवाज आ रही है ना? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, है क्लियर, पहले से थोड़ा बेटर है। अच्छा चलो ठीक है थैंक यू हाँ नेक्स्ट है पर्सनल कंडक्ट एंड लॉबिंग ओके वो क्या होता है the corporate executives and political leaders and government officials are in the same social class this create a
personal relationship between both parties. Also, organizations formally forms the group to present the issues to the government bodies. मैं दोबारा इसको रीडिंग करके समझाता हूं. द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर इन सम सेम social class. Same social class means they falls under same policies, same lobbying. कौन कौन आता है? कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव आता है, पॉलिटिकल लीडर्स आता है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होता है, दे आर लाइंग डाउन इन ए सेम सोशल स्ट्रेटेजी, social both the parties. ये जो सेम क्लास के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिशियल्स होते हैं, दीज आर द ऑफ सेम. इसकी वजह से क्या होता है? एक सोशल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज क्रिएट होता है. ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन formally from the group to present the issues of the government bodies. That is why what it happened, because they are owing to the same class, the policies the government fees for any corrections, any permissions, or any issues. They wait a yes, they सर आवाज कट कट के आ रही है. फिर से हम्म, फिर से हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सर आ तो रही है. हाँ आ रही है सर. ठीक है, क्या करें अब, नेटवर्क ही है. मैं आज जियो में यूज कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा है, क्या कर सकता हूँ. जब भी ऐसा होगा ना मधुस्मिता, तो हमको थोड़ा सा बता देना, मैं दोबारा कोशिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एनीथिंग. मैं एक बार हाथ उठा के फोन को होल्ड कर रहा हूँ, कभी हाथ नीचे करके फोल्ड होल्ड कर रहा हूँ, कभी चल के पढ़ा रहा हूँ, कभी बैठ के पढ़ा रहा हूँ. टफ टाइम. ओके, द नेक्स्ट वन इज forming trade unions and chamber of commerce. The next one is forming trade unions and chamber of commerce. Trade unions and the chamber of commerce are associations of business organizations. Okay, the trade unions and the chamber of commerce are associations of business organizations with a common interest. They work to find the common issues of organizations and present reports, hold dialogue to discuss them with the government bodies. Okay. Now, forming trade unions and chamber of commerce. ये क्या है? These are also are the two main important aspects of business environment. These two are the associations of business organization. ये दोनों को चेंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड यूनियंस, ये दोनों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा एसोसिएशन माना जाता है. आपको पता होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जब भी आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाओ ना, आपको ट्रेड लाइसेंस की बहुत जरूरत है. डू यू नो दैट मधुस्मिता? वट एवर द बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, whether it is a small or in a medium or in a large, you want to have a trade license. आपको सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा. उसके बाद यूनियन, ट्रेड यूनियन के पास जाना पड़ेगा. You need to go to the trade unions, and from there you need to make an authority and permissions, and if they granted those permissions, then only you can get the trade license. Okay, lot of steps are there to get a trade license. So these are the activities, or these are the, you can say, these are the common associations where you, if you want to do any business organize, if you want to do any business, you require these things. Okay, now they work to find the common issues of organizations and present report, hold to dialogue to discuss them with the government. Now, what is the work of trade union and chamber of commerce? Trade unions और chamber of commerce का काम क्या रहता है? If you may, you will going to get this question, what is the work of trade union and chamber of commerce? देखो यहाँ पर लिखा है, they work to find the common issues of organization. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज है, तो आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हो चेंबर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड यूनियन में. सपोज
in trade union, lot of workers, they मैं आपको और दूसरी तरीके से समझाता हूं। देखिए, ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है। सपोज आप बहुत बड़ा प्लांटेशन किए हो, प्लांट किए हो, उसमें डेफिनेटली यूनियन रहता है। अब यूनियन का काम होता है कि वर्कर को टाइम में सैलरीज मिल रहा है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज दे आर गेटिंग एनी अदर फैसिलिटीज और नॉट। और जब भी वो बोनस, आपका सैलरी इंक्रीमेंट्स, ये सब हर एक जगह रहता है। तो जब भी उनको लगता है, वर्कर्स को लगता है कि वी आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, we are getting deprived of all these facilities, they directly talk to the trade union. The trade unions are co-independent to or co-dependent to the government officials. और ट्रेड यूनियन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंटर रिलेटेड रहता है। तो जब भी एज बीइंग अ वर्कर आप जब भी कुछ परेशानी होते हो ना, तो आप अपने यूनियन के पास जाते हो। तो वो यूनियन अपने मैनेजमेंट से बात करके उस चीज को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब देखा जाता है कि अपने लेवल पे वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें गवर्नमेंट का फिर इंटरफेयर होता है। दिस इज द वर्क ऑफ अ ट्रेड यूनियन। एम आई क्लियर, मधुस्मिता? इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज द वर्क ऑफ अ ट्रेड यूनियन एंड द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रेजेंट रिपोर्ट्स? और चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर देयर, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स यू आर शेयरिंग इन द मार्केट, आपने कितने शेयर खरीदे हो, आपका कितना टर्नओवर रहा है, आपका एसेट कितना बढ़ रहा है, इसका एक लिस्ट, इसका एक डॉक्यूमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स में आपको सबमिट करना होता है एवरी ईयर टू गेट द रेनोवेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दोस चेंबर ऑफ कॉमर्स। तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगे, देन ओनली यू कैन वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर, मधुस्मिता? इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रेड यूनियन एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स? हेलो, इज इट क्लियर टू यू? I think my voice is clear to you. Okay. Now, political action committee. The next one is political action committee. Yes, Madhusmita, कोई डाउट है? ट्रेड यूनियन का काम है और चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्या काम होता है? इज इट क्लियर टू यू? यस सर, इट इज क्लियर, बट एक डाउट थी जो मैं अभी व्हाट वर्ड? सर देखो ये तुम्हारा जो वॉइस कितना ब्रेक हो रहा डायग्राम है। है, हाँ सर ये जो डायग्राम है ना, जो इससे मधु, पहले हम्म, बोलो। यस मधुस्मिता, टेल मी। मैम, आर यू ऑडिबल ऑफ मधुस्मिता's वॉइस? हाँ बता रहा हूँ ना मैम, सबके फोन में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है मधुस्मिता, टेल मी क्या डाउट है, डायग्राम में सर क्या डाउट है? सर इस डायग्राम का जो है जिसमें बेसिकली जिस वे से उसको रिलेट किया गया है, मतलब मेरे को वो चीज तो समझ में नहीं आ रहा है ओ गॉड, मैं इतना आगे बढ़ गया तुम हमको डाउट पूछा नहीं? सर, क्योंकि हो रहा है मैं इतना आगे बाकी। मैं इतना आगे बढ़ गया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं, डोंट वरी। ओके, नाउ लुक एट द डायग्राम। डायग्राम आपके पास है? डायग्राम आपके पास ओपन है ना? देखो, ये जो गवर्नमेंट और बिजनेस का एक जो बना हुआ है, वो देखो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देखो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। कैसे होता है? देखो, गवर्नमेंट, लुक एट दिस, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? बाय लॉ एंड रेगुलेशंस, बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडी, क्रिएटिंग सेंट्रल बैंक्स, ट्रेड पॉलिसीज। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को इस तरह से। ठीक है, ये एक हो गया दागी। अब दूसरे दागी में आ जाओ। अब बिजनेस क्या करता है? बिजनेस करता है पर्सनल कंडक्ट। बिजनेस इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। अब बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? पर्सनल कंडक्ट एंड लॉबिंग, फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, लार्ज इन्वेस्टमेंट।
गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लॉज एंड रेगुलेशन की तरह से, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरह से, सेंट्रल बैंक क्रिएट करके, ट्रेड पॉलिसीज की तरह से। दे यूज टू क्रिएट, गवर्नमेंट यूज टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस बाय क्रिएटिंग दीज क्राइटेरिया। नाउ business organization used to influence the government by creating, forming, okay, action committee, large, suppose example, in business organization there is a strong, तो फॉलोइंग अब लॉ, इससे उन्होंने ट्रेड यूनियन बना देते हैं, यूनियन बना देते हैं, बिजनेस यूनियन बना देते हैं। सपोज अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आपके नहीं मिल रहा है, वो है, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। मैं कट करता हूँ। मैम बाकी ऑनलाइन क्लासेस, हाँ मैम मेरी आवाज क्लियर है ना? मैम बाकी जो ऑनलाइन क्लास, ओके तो मैम क्योंकि बाकी सारों की भी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी ना, तो उसमें कोई दिक्कत? क्योंकि इन बिटवीन मेरा भी, हाँ वो क्लियर है। हम्म। कल मैम एक बार हम चेक करते हैं, कल आ पाता है कि हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बाप रे, क्या हो रहा है पता नहीं मैम, ये कुछ नेटवर्क इश्यूज इतना हो रहा है।
अभी मैं दूसरा मोबाइल से ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ये मोबाइल से करना पड़ रहा है, बहुत इश्यूज हो रहा है। अच्छा देखो मधुस्मिता, मैं, ठीक है मधुस्मिता, मैं तुमको समझा देता हूँ। वो जो डायग्राम है, दैट पर्टिकुलर डायग्राम विच आई हैव टोल्ड यू, वो डायग्राम है, जस्ट मिनट वेट, ठीक से डायग्राम को देखो। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है business organizations को, how the government influences any business organizations by creating laws and regulations, by creating policies, strategies, conducting laws. नेक्स्ट होता है उसके बाद गवर्नमेंट क्रिएटिंग एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज। एजेंसीज को मैंने बताया आपको, सीबीआई, सीआईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स, ओके। उसके बाद जो होता है ईडीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स, ये बहुत सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज होते हैं। व्हाट इज देयर वर्क? देयर वर्क इज टू, कोई भी इलीगल बिजनेस में अगर होता है तो ये जाके कैच करेंगे, ठीक है, ये क्रिएट करते हैं। और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएट करते हैं। रेगुलेटरी जैसे फॉर एग्जांपल चेंबर ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब क्या करते हैं, कुछ अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से स्टडीज करते हैं कि अच्छे से वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, वो उसका जो प्रोडक्शन है वो सही से कर रहा है कि नहीं, एमआरपी है कि नहीं, जो गुड्स वो कंपनी बाहर छोड़ रहा है वो गुड्स प्राइसेबल है कि नहीं। तो दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर क्रिएट करते हैं, ताकि वहां पर जाके पैसा जमा हो, जो भी टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट यूज टू पुट इनसाइड द इन द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब तैयार करते हैं। तो दीज आर ट्रेड पॉलिसीज। व्हाट आर द पॉलिसी? ट्रेड पॉलिसीज मींस बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो ये गवर्नमेंट का जो है बिजनेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, गवर्नमेंट ये फॉलो कर। नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? दे यूज टू क्रिएट बाय कंडक्टिंग लॉबीज। वो लॉबीज क्रिएट करते हैं, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अपना लॉबी क्रिएट करते हैं, अपना लॉज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सर आपके लॉ की वजह से हम लोग का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, कृपया करके हम ये लॉ फॉलो करें। इस तरह से वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप पोजीशन पे है वो वर्कर से तो बात नहीं करेंगे, तो कोई भी कंपनी जैसे टाटा स्टील प्लांट, उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन बनाया हुआ है। जो भी वर्कर्स का प्रॉब्लम है जो भी है वो डायरेक्ट ट्रेड यूनियन से बात करेगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे आज स्ट्राइक है, बंद होने वाला है, तो वो पॉलिटिकल कमिटी बना के रखा है कि पॉलिटिकल कमिटी उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, वो इन्फ्लुएंस करता है फिर गवर्नमेंट को। और दूसरी बात, लार्ज इन्वेस्टमेंट। एक लार्ज इन्वेस्टमेंट में ये एक गवर्नमेंट बिजनेस का एक अदर तरीके से इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा टैक्सेस अपने ऊपर या बिजनेस के ऊपर लेविट करेगा। तो ये दोनों तरह से दो एक दूसरे को को रिलेटेड, को इंडिपेंडेंट होके एक दूसरे को इन्फ्लुएंसेस करते रहते हैं। और अगर ये लीगल तरीके से चलता है तो बिजनेस आगे बढ़ता है। जैसे टाटा स्टील प्लांट, टाटा क्यूमेंस, आप देखिए टाटा मोटर्स आज लीगल तरीके से काम कर रहा है बोल के आज कितना इसका ग्रोथ है, ठीक है। जो भी रूल्स एंड लॉज है वो उसको फॉलो कर रहा है। और सेम तरीके से बिजनेस, जो टाटा स्टील का जो बिजनेस है उसका जो टैक्स लेवी प्रोसेस है वो गवर्नमेंट को फिर फायदा पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान या नॉर्मल वर्कर्स जो है, जो काम कर रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है। तो दिस इज द सर्कल, और विच इज राउंड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक दूसरे को को रिलेटेड, को इंडिपेंडेंट होके इन्फ्लुएंसेस करना। एम आई क्लियर मधुस्मिता? मधुस्मिता, इज इट क्लियर? सर। अभी डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है, जब भी ऐसा डाउट होगा ना प्लीज हमको पूछ लेना। मैं तो बहुत आगे बढ़ गया था, ठीक है, वेरी गुड, यू आस्क्ड मी, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो यू अंडरस्टैंड, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड पॉलिसीज निकाल के बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो लीगल तरीके से, बट इट शुड बी डन इन ए लेजिटिमेट वे।
इलीगल तरीके से नहीं होता है, इट शुड बी डन इन लेजिटिमेट वे। इससे जीता एग्जांपल है ओके, टाटा स्टील प्लांट इसका सबसे जीता दा एग्जांपल है। वहां जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है, और गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है वो प्लांट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है, बट बोथ आर इन ए लेजिटिमेट वे। एम आई क्लियर मधुस्मिता? आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। हेलो? यस, यस सर। चलो ठीक है, तो मधुस्मिता आज यही छोड़ देते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। कल हम जहां कल तो नहीं होगा, संडे है, हम लोग क्या 1 जनवरी को क्लास रखेंगे मैम? मैम आप पहले मधुस्मिता से तो पूछ लीजिए। मधुस्मिता? हाँ। ओके मैम, आई डोंट, ठीक है कोई बात नहीं, 1 आवर इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग दिस। नहीं मैम, कोई पूछ दिक्कत लेते नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट जनवरी को भी यू वांट टू डू द क्लासेस ऑन 1 जनवरी? यस सर, यस सर, इट्स चलो ओके। ओके देन, ठीक है, ओके वी विल कंटिन्यू ऑन द, कितना बजे? मैम फिर आप 7 बजे हमको भेजेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यस मैम, वी कैन कंटिन्यू टुमारो एट 5 PM। ओके ठीक, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।